every organization has to prepare two accounts. ठीक है, उसको दो statements बनानी होती हैं. Basically they prepare financial statements. Every company prepares financial statements. Financial statements are comprising of three statements. कौन-कौन सी financial statements में आती हैं? Number one is financial statements. ठीक है, we have to prepare three types of financial statements. One is income statement. It is related to income and expenses. Second statement we prepare is statement of financial position. Statement of financial position. It relates to or it includes assets, liabilities and capital. And third statement which we prepare is cash flow statement. Cash flow statement is related to inflow and outflow of cash, and it is in A2 syllabus. And it is in A2 syllabus. ठीक है, A2 में पढ़ेंगे. ठीक है, okay. Now what we have to do? Every organization prepares three statements, which is number one, income statement, which is related to income and expenses. Number two, statement of financial position, which includes assets, liabilities, and capital, and the cash flow statement, which is related to inflow and outflow of cash, and it is A2 syllabus. So first we start with इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? हम आपको इसको डेफिनेशंस देखते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद इसके फॉर्मेट्स पे आएंगे एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइजेस. ठीक है, कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं और कुछ फॉर्मेट लिखते हैं. आपने फिर इसको कल याद करके आएंगे तो फिर हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे. ठीक है, नाउ इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट This statement shows the profitability of the business. For a specific period of time. Normally, one accounting year bracket में 12 months. Income statement is comprising of two parts. One is trading account, another is profit and loss account. Trading account, this statement shows the profit earned from the trading of the business. This statement shows the profit earned from the trading of the business and any expense done to convert the goods into saleable condition is added in cost of sales.
profit equals to revenue minus cost of sales. This statement shows the profit earned from the trading of the business and any expense done to convert the goods into saleable condition is added in cost of sales. ठीक हो गया? This is trading section, and second one is profit and loss account. 20%. Profit and loss account, अगर 20% चाहिए 20%. Okay, the profit and loss account, this statement shows the profit earned from the normal operations of the business and subtracting all expenses done to run the business on daily basis. Profit for the year profit for the year is equals to gross profit minus expenses. Okay. Income statement is the first statement which identifies the profitability of the business. कि business में कितना profit हो रहा है, कितना loss हो रहा है, it is identified by income statement. Income statement identify करेगी हमारे business में कितना profit हो रहा है, कितना loss हो रहा है. ठीक है. अब income statement is comprising of two sections. One is number one trading section and number two is profit and loss section. अब trading section में हमारे पास क्या है? This statement shows the profit earned from the trading of the business. Business की trading से, buying and selling से, whatever the profit we are earning will be transferred to trading account. ठीक है? And any expense done to convert the goods into saleable condition. अगर हम किसी कोई ऐसा expense कर रहे हैं जिससे हम किसी good को saleable condition में convert कर रहे हैं, that conversion of goods into saleable condition, यानी कि saleable condition में convert किए बगैर हम उस item को sale नहीं कर सकते. ठीक है? नहीं कर सकेंगे ना जब तक वो saleable condition में convert नहीं होगी. तो वो expenses, that expenses will be charged to income statement. हम उसको income statement trading account में cost of goods sold में लेके जाएंगे. ठीक है? For example, कोई भी items है, ठीक है, you are converting them into saleable condition by converting into small packages. ठीक है? हमारे पास आटा, घी, दाल, चावल हमारे पास बड़ी-बड़ी पैकिंग्स में आता है. हम उसको क्या करते हैं? स्टोर में देखिए ना, आधा किलो का, 1 किलो का, 5 किलो का, 2 किलो का पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं. So that packing expense is also converting goods into saleable condition. और भी बहुत से ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमारी गुड्स को सेलेबल कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं. उसके बगैर वो कमोडिटी सेल ही नहीं हो सकती है. फॉर एग्जांपल, हम जैम परचेज करते हैं, जैम का एक स्पेशल जार होगा, ठीक है, उसके बगैर वो सेल नहीं हो सकता. बहुत कॉमन एग्जांपल, केक लेने जाते हैं बेकरी से, ठीक है, अब उसकी जो पैकिंग है और खास तौर पे जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके नीचे जो सिल्वर कलर की ट्रे होती है ना, अगर वो ट्रे ना हो तो केक अपनी जगह रहेगा. So that cost is conversion. उसको सेलेबल कंडीशन में कन्वर्ट करा है. वो कई जगहों पे हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे तो वो
डायरेक्ट कॉस्ट में कन्वर्ट करता है, बिकॉज उसके बगैर वो सेल ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता, यानी कि वो सेलेबल आप वो सेल कर ही नहीं सकते उसके बगैर, डब्बे के बगैर, पैकिंग के बगैर, और जो ट्रे उसके नीचे उसके बगैर वो सेल ही नहीं हो सकता। वो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो किधर जाएंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, बेसिक ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू में से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करेंगे, विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। अभी मैं इसकी स्टेटमेंट भी दिखाता हूं आपको और इसका फॉर्मेट भी देंगे इंशाल्लाह। देन नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट टेल्स अस अबाउट द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस, जो बिजनेस के डे टू डे जो ऑपरेशंस है, जो बिजनेस का काम है, ठीक है, उससे जो हमें नॉर्मल ऑपरेशन से जो अर्निंग हो रही है, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट, एंड ऑल द एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए हम यहाँ पे चार्ज करेंगे, दे विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर इनकम, एंड फाइनली व्हाट विल गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां से आएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नाउ इनकम स्टेटमेंट का हमारे पास जो फॉर्मेट है, जो मैंने नोट्स में कॉपी करा ली है, वो वक्त के साथ साथ थोड़ा सा डेवलप करेगा विद द पैसेज एंड टाइम विद सर, और कुछ कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे क्योंकि वी आर स्टार्टिंग एट न्यू एज अ न्यू सब्जेक्ट, तो हमको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उसमें चीज़ें ऐड होती रहेंगी। ठीक है, ये फाइनल एंड फाइनल थिंग नहीं है, इसमें चीज़ें जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, थिंग्स विल गोना ऐड अप। ठीक है, अब हम बेसिक सा फॉर्मेट, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मेट में भी आपको इनकम स्टेटमेंट का लिखवाता हूँ और फिर इसको आगे चलते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मेट है, इसको लिखें और फिर उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हेडिंग देंगे हम, मिस्टर ABC, किसी का भी जो भी बिजनेस का नाम होगा वो लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग देंगे, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ठीक है, दो कॉलम्स बनेंगे, दीज आर टू कॉलम्स, नो डेबिट एंड क्रेडिट, ये डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, क्या चीज है, डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, यस दे आर सिंपली टू कॉलम्स, सिंपली टू कॉलम्स। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल दो कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वी स्टार्ट विद रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है हमारा, सेल्स। रेवेन्यू क्या होती है हमारी, सेल्स। अब रेवेन्यू को हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कॉलम में। ठीक है, कॉपी करें फिर साथ साथ में समझाता हूँ। रेवेन्यू को सेकंड कॉलम में लिखेंगे, लेस कर देंगे इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैंने बोला वो चैप्टर नंबर 8 से आएगा, अभी बेसिक, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर इधर आ जाएगा। ठीक है, एंड वी विल सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। मैं अभी और फर्दर भी एक्सप्लेन करता हूँ, गेट ग्रॉस प्रॉफिट। Then after gross profit, we will subtract all the expenses. We will subtract all the expenses. जितने भी हमारे expenses हैं बिजनेस के वो सारे माइनस करेंगे। कुछ लिख देता हूँ, but you understand के expenses क्या होते हैं। For example, salaries, rent, insurance, repairs, motor expense, taxes। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारे पास, utilities, फैक्ट्री। फिर हमारे पास आ जाएगा सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है, तो several types of expenses can be there। इन सारे expenses को ऐड करेंगे, यहाँ पे राइट में ट्रांसफर करेंगे। In accounting always we transfer the sum or the total, or after any calculation we transfer the amount to the
राइट कॉलम, ठीक है, राइट कॉलम में ट्रांसफर करेंगे एंड वी विल गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है। अभी इसी से नेक्स्ट चैप्टर में इसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है, ठीक है। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसको हमने कैसे करना है। सो सबसे पहले बिजनेस का नाम, जो भी बिजनेस का नाम होगा, विल राइट द नेम ऑफ द बिजनेस, देन स्टेटमेंट फॉर द ईयर, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड क्वेश्चन में डेट आइडेंटिफाइड होगी हमारे पास। देन रेवेन्यू, रेवेन्यू को हम राइट कॉलम में लिखेंगे, सेल्स क्वेश्चन में गिवन होगी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। परचेजेस, परचेजेस की वैल्यू भी क्वेश्चन मैंने आपको जैसा बताया था कि ट्रायल बैलेंस तक हमने पढ़ लिया चैप्टर नंबर 6 में। अब आगे हर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस हमें बना हुआ मिलेगा, यानी कि सेल्स का अकाउंट जो हम बनाते थे उसका आंसर पहले से हमें मिलेगा, ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में मिलेगा बैलेंस। अब परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस करेंगे, परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी जो आंसर वो है, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे, विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। अब जितने भी एक्सपेंसेस हैं इस क्वेश्चन में जो गिवन होंगे उन सबको लिस्ट डाउन करेंगे, उनका टोटल राइट कॉलम में ट्रांसफर करेंगे एंड देन वी विल सबट्रैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, विल गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखेंगे, सबसे पहले बिजनेस का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द बिजनेस एंड देन ईयर एंडेड, ईयर, स्टेटमेंट का नाम, बिजनेस का नाम, स्टेटमेंट का नाम मस्ट। Before preparing any statement, we have to identify the name of the business, the name of the statement, and then for the period जिसके लिए हम ये statement बना रहे हैं। Revenue लिखेंगे सबसे पहले, आपको ये फॉर्मेट याद होना चाहिए। पहले यहाँ तक एक्सपेंसेस तक क्लियर हो तो हमें 100% आगे ट्रांजैक्शंस हम कन्वर्ट इनकम स्टेटमेंट में कर सकते हैं। रेवेन्यू राइट कॉलम में आ जाएगा, देन लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अभी इसमें कुछ चीजें ऐड होनी है नेक्स्ट चैप्टर से। परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस करेंगे, ठीक है, परचेजेस में से क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस करेंगे, आंसर इधर आएगा। रेवेन्यू में से इसको माइनस करेंगे, विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड देन वी विल लिस्ट डाउन ऑल द एक्सपेंसेस, उनका सम यहां पे लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, विल गेट प्रॉफिट। एनी क्वेश्चन? ठीक है, इसको याद रख के आना है, इसको याद रख के आना है, बिकॉज अब आपने क्या करना है, जिस पेज पे अभी हैं आप, ठीक है, जहां पे भी आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई है उससे आगे 2 पेज छोड़ दें, उससे आगे 2 पेज छोड़ दें और पहले पेज पे लिखे बैलेंस शीट नोट्स और दूसरे पेज पे बैलेंस शीट फॉर्मेट लिखें। 2 पेज छोड़वाए